Very good morning to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number second from your history book, and the name of your chapter is From Trade to Territory. Okay, so now in our last class we discussed about the Battle of Plassey. Okay, so we have gone through like India, how East India Company began trade in Bengal, and after that we have seen how trade led to battles, and after that the famous Battle of Plassey. It is so famous, and it is so famous because it was the first major victory of the company won in India. Okay, so now what happened after the Battle of Plassey? Okay, so now these are some of the important characters of Battle of Plassey: Robert Clive, सिराजुद्दौला, मीर जफर, ठीक है, जिनको पपेट रोलर बना लिया गया था, एंड रॉबर्ट क्लाइव प्रॉमिस्ड हिम कि डोंट फाइट विद अस, एंड इफ वी successfully defeat Sirajudullah, and we will make you the Nawab of the Bengal. Okay, so he was the Mir Jafar. So now what happened after Battle of Plassey? ठीक है, सो नाउ सिराजुद्दौला वाज assassinated मतलब कि जब कैप्चर करके जब किसी को मार देते हैं, ठीक है, या किसी को मर्डर कर देते हैं, दैट इज नोन एज assassinated. ओके, सिराजुद्दौला वाज assassinated and Mir Jafar made the Nawab. Company made Mir Jafar the Nawab of Bengal, but the company was still unwilling to take over the responsibility of administration. ठीक है, now कंपनी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, कंपनी वॉन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बट फिर भी कंपनी जो है दे आर मोर लाइक विलिंग टू डू ट्रेड. They are not willing to take over the responsibility of administration. They even didn't want कि हम नवाब बन जाते हैं and हम ही क्या है यहाँ पे रूल करते हैं. No, the company was still unwilling to take over the responsibility of administration because their main objective, their prime objective was the expansion of trade. एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. अब मेन उनको पैसे से मतलब था, ठीक है, रिसोर्सेज से मतलब था, गुड्स से मतलब था, और वो गुड्स जो है ट्रेड के एक्सपेंशन से ही आएगा. ठीक है, तो अब दे हैव समथिंग इन देयर बैक ऑफ माइंड कि इफ वी लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन थिंग, देन लाइक आवर जो हमारा जो फोकस है ट्रेड वाला वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट्स कम होने लग जाएंगे. सो देयर मेन ऑब्जेक्टिव, देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज ओनली एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. And if this could be done without conquest, conquest means fighting, quarrel, ladaiyan, battles. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willingly to grant privileges, then territories need not be taken over directly. Now, their prime objective was to expand the trade, and they wanted कि ये जो trade का expansion है वो कैसे हो जाए विदाउट एनी कॉन्क्वेस्ट और विद द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स जो खुद विलिंगली बोले कि विलिंगली प्रिविलेजेस दे दें, ठीक है, राइट टू मिंट कॉइन्स दे दें, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड दे दें, जमींदारी राइट्स दे दें, ये कुछ प्रिविलेजेस जो थे वो बोल रहे थे कि लोकल रूलर्स हमें खुद ही दे दें. देन हमें टेरिटरीज को डायरेक्टली टेक ओवर नहीं करना पड़ेगा, हम अपने ट्रेड में जो है, हम अपने बिजनेस में जो है बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसमें फोकस कर सकते हैं. Okay, so if somebody asked before like Battle of Plassey and just after the Battle of Plassey, what was the prime objective of East India Company? So their main objective was the expansion of trade. But what happened now? Company was facing so many challenges. Company discovered that this was rather difficult. ठीक है, कि अब puppet ruler से ज़्यादा काम नहीं चलेगा. ठीक है, अब बहुत ज़्यादा difficulties कंपनी को face करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा challenges face करने पड़ रहे थे. So the puppet nawabs were not always as helpful. जो पपेट नवाब थे, कंपनी ने तो क्या है, मीर जफर को भी पपेट नवाब बना दिया था कि वो जैसे बोलेंगे वैसे करना होगा, पपेट रूलर बना दिया था. तो इससे क्या हुआ था, the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be.
आफ्टर ऑल why? Because they had to maintain a basic appearance of dignity. उनकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, उन्हें भी अपना डिग्निटी मेंटेन करना था, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना था। जो पॉपुलेशन थी, जो आप बोलते हैं ना प्रजा जो थी, ठीक है, अब उनके सामने तो उन्हें अपना रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रखना ही था ना, कि वो राजा हैं और प्रजा के सामने कि हमारे पास पावर है, ये चीज तो उन्हें शो करनी थी ना। एंड सोवेरेनिटी, इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स यहाँ पे किसको बोला गया है? जो कॉमन सिटीजन्स है, कॉमन पॉपुलेशन है, उनके लिए बोला गया है। एंड सोवेरेनिटी मतलब कि इट इज अ लैंड, ठीक है, एक टेरिटरी है, एक रीजन है, और इस टेरिटरी में जब आपकी परमिशन के बिना कोई घुस नहीं सकता, ठीक है, यू हैव दैट प्रोटेक्शन, इतना प्रोटेक्शन लेवल है कि आपके परमिशन के बिना कोई घुस नहीं सकता या फिर कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, दैट इज नोन एज सोवेरेनिटी। ओके, सो नाउ why puppet nawabs were not always as helpful as company wanted them to be? Because they have to maintain their dignity self respect, they have to maintain their sovereignty. And why? If they wanted respect, क्यों? अगर उन्हें जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, तो उन्हें अपना ये जो ये उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि कंपनी के अकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट कुड द कंपनी डू? अब कंपनी क्या करेगी? व्हाट कुड द कंपनी डू? सो व्हेन मीर जफर प्रोटेस्टेड, ठीक है, व्हाट हैपेंड? मीर जफर प्रोटेस्टेड कि आई विल नॉट फॉलो योर ऑर्डर्स एंड आई विल डू व्हाट आई रियली वांटेड टू देम। तब कंपनी ने क्या कर दिया? उनको डिपोज कर दिया। डिपोज कर दिया मतलब उनको नवाब की पोजीशन से हटा दिया एंड इंस्टॉल्ड अगेन उनकी के जैसे मीर कासिम को भी क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया एज अ नवाब। मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया। बट अगेन मीर कासिम को भी सेम डिफिकल्टीज फेस करने को मिली कि रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी अगर हम कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, कंपनी जैसा बोलेगी वैसा करेंगे तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितनी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मीर कासिम ने भी क्या कर दिया था? कंप्लेन करने लग गया था ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इससे क्या हुआ था? इससे एक बैटल हो गया था मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। एंड दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सार। बक्सार क्या है? बक्सार एक जगह का बैटल। हम क्यों बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सार, बैटल ऑफ प्लासी? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्लेस में बैटल होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है, वॉर होती है। तो 1764 में मीर कासिम को क्या हुआ था? मीर कासिम ने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी थी। तो देन इट रिजल्टेड इनटू द बैटल ऑफ बक्सर, और जिसमें मीर कासिम जो थे वो डिफीट हो चुके थे, हार चुके थे, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंड? दे कंपनी री-इंस्टॉल्ड मीर जफर। कंपनी ने फिर से क्या है? री-इंस्टॉल कर दिया, नवाब बना दिया मीर जफर को, बट विद सम कंडीशंस। ही हैज टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, ठीक है, उसको हर महीने 5 लाख रुपए जो है कंपनी को देते होते थे। बट व्हाट हैपेंड? द कंपनी वांटेड मोर मनी, मोर टेरिटरीज एंड रेवेन्यू। अब कंपनी बोल रही थी कि नहीं, हमें तो और पैसा चाहिए। द कंपनी वांटेड मोर मनी। व्हाई दे वांटेड मोर मनी? दे वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स and meet the demands of the trades and its other expenses। और भी expenses होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स की सैलरीज देनी होती है, या फिर आप बोल दीजिए कि वॉर को फाइनेंस करना होता है। वॉर में जितने भी वेपन्स लगते हैं, अब उसके लिए रिसोर्स के लिए पैसा रुपीज लगते हैं, ठीक है, करेंसी लगती है। तो उसके लिए वॉर के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ट्रेड की नीड्स हो कि शिप अच्छी क्वालिटी की शिप हो, ठीक है, शिप को ले जाने के लिए लेबरर्स हो गए, या फिर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लेबरर्स हो गए। तो ये सब की जो नीड्स थी, तो कंपनी को इसके लिए बहुत ज्यादा और ज्यादा पैसों की जरूरत थी, मनी की जरूरत थी। कंपनी वांटेड मोर टेरिटरीज। व्हाई? बिकॉज दे रियली वांटेड टू एक्सपेंड द ट्रेड एंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड दे रियली वांटेड टू कैप्चर द टेरिटरीज। दे wanted to establish factories, they wanted to establish warehouses, they wanted to establish offices, and for that they really need territories. They wanted to make their own ports. Okay, so that's why company wanted more money, more territories, and even more revenue. Even they wanted कि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स है वो हमारे पास है। And why it was happening? Why? Question arises again, why? Because by the time
Now the question arises why. I already told you they wanted it because they really wanted to finance their wars, to meet their trade demands, to meet their other expenses. Okay, so that's why they really wanted this money, territories, and revenue. By the time Mir Zafar died in 1765, now what happened? Mir Zafar 1765 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में क्या किया था? मीर कासिम को डिफीट कर दिया था. अगेन दे रीइंस्टॉल्ड हिम 1764 में. एंड नाउ व्हाट हैपेंड? मीर जफर died. By the time Mir Zafar died in 1765, the mood of the company had चेंज. अब जो पपेट नवाब, पपेट रूलर वाला जो कंडीशन, जो मूड था कंपनी का, वो चेंज हो गया कि अब हमें पपेट नवाब की जरूरत नहीं है, वो हमें ज्यादा हेल्पफुल नहीं है. वी रियली वांट मोर मनी, मोर टेरिटरीज, मोर रेवेन्यू. एंड एट दैट टाइम रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर्ड, व्हाट ही डिक्लेयर्ड? वी मस्ट indeed become nawabs ourselves. 1765 में उन्होंने बोला कि हमें ही क्या है, नवाब बन जाना चाहिए. We must indeed become nawabs ourselves. Now East India came to India 1600 in 1600. ठीक है, 1600 और you can say कि 17th century में, mid of 17th century में वो आए. पूरे 100 साल तक उन्होंने ट्रेड किया, बट उस टाइम तक वो नवाब नहीं बनना चाहते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना चाहते थे, वो रूलर्स बनना नहीं चाहते थे, या कोई भी टेरिटरी को कैप्चर करना नहीं चाहते थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जफर, व्हेन नवाब्स वर नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स needed by East India Company, then what he did, he declared that we must indeed become nawabs ourselves. अब हमें ही क्या है, यहाँ का नवाब बन जाना चाहिए. नवाब means ruler. Okay, so now finally in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. अब कंपनी ऑफिशियल्स को क्या किया था? कंपनी ऑफिशियल्स को मुगल एम्परर ने, उस टाइम पे मुगल एम्परर ही चल रहा था, जो मेन था वो कौन था? मुगल एम्परर का ही राज चल रहा था, बोल सकते हो. तो मुगल एम्परर ने क्या किया? कंपनी को दीवान बना दिया, दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? आप एक लैंड बाउंड्री बोल दीजिए या एक स्टेट बोल दीजिए. जैसे आज के टाइम पे वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, राइट? तो स्टेट्स एट दैट टाइम एक पर्टिकुलर एक जो लैंड होता था, ठीक है, एक बाउंड्री होता था, एक रीजन होता था, उसको प्रोविंसेस बोला जाता था. तो जो बंगाल प्रोविंसेस था, वहां का दीवान जो है उन्हें बना दिया गया था. ना व्हाट इज दीवान? दीवान एक इट्स लाइक एक पोजीशन दे दी जाती है, ठीक है. व्हाट हैपेंड? designated as a powerful government official or you can say minister, ठीक है, उनको क्या बना दिया जाता है? मिनिस्टर बना दिया जाता है. जितने बंगाल के जो प्रोविंसेस हैं वहां पे उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है. मुगल एम्परर ने अपॉइंट भी कर दिया. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. अब जो दीवानी बनाया था, ठीक है, दीवान बना दिया गया था, मिनिस्टर बना दिया गया था. अब इससे क्या हुआ था? इससे जो कंपनी है, कंपनी को क्या कर दिया गया था? कंपनी कर दी थी कि आप है ना रिसोर्सेज यूज कर सकते हो बंगाल के, ठीक है, रेवेन्यू रिसोर्सेज. तो अब कंपनी के लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है, कि जितना रिसोर्स चाहिए हम यूज कर लेंगे, ठीक है. तो अब क्या है? कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू, और उनका जो मेन प्रॉब्लम था कंपनी का, वो सॉल्व हो गया. बट ट्रेड विद इंडिया had expanded but it had to buy most of the. अब जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी फेस कर रही थी, क्या थी? Trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. Now India had to trade, ठीक है, इनका ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड भी एक्सपेंड हो गया था. बट जो मोस्टली जितने भी रिसोर्स, जितने भी गुड्स होते थे, चाहे वो सिल्क खरीद रहे होते थे, चाहे कॉटन होता होगा, चाहे आप बोल सकते हो स्पाइसेस हैं या कुछ भी, तो ब्रिटेन को वो सारी चीजें
किस चीज से खरीदनी पड़ती थी, गोल्ड से या फिर सिल्वर से ही परचेज करनी पड़ती थी। अब आपको पता है पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि एक गुड दिया दूसरा गुड्स ले लिया, तो बार्टर सिस्टम हो गया। बट उसके बाद धीरे धीरे क्या है, गोल्ड से चेंजेस होने लग गए कि गोल्ड देते हो, गोल्ड के बदले में क्या है आपको गुड्स मिलता है। अब ब्रिटेन के पास ये भी प्रॉब्लम था कि उसका गोल्ड रिजर्व भी क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। वाई? Britain had no goods to sell in India. अब क्वेश्चन अराइज होता है, why Britain had to purchase all the goods in gold and silver? Why? Because they had no goods to sell in India. उनके पास कोई भी goods नहीं था जो इंडिया में वो sell कर सके. That's why they had to buy all the goods in gold and silver. Okay. So now what happened? The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. अब ये पोजीशन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने गोल्ड का जो आउटफ्लो था थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। गोल्ड के आउटफ्लो, गोल्ड से परचेज नहीं करते थे। And when they became Diwani and when they became Diwan of the Bengal provinces, they entirely stopped the outflow of gold from Britain. Now वो जो revenues थे, जो इनके expenses थे, वो कैसे fulfill हो गए थे? Now if they really wanted to purchase cotton, silk और कंपनी के लिए वॉर के लिए जो ट्रूप्स चाहिए या फिर बिल्डिंग बनानी है, फोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है, ऑफिसेस बनाने हैं, उसके लिए जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होगा? नाउ दे जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया, कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। जितने भी रेवेन्यू वो इंडिया से कलेक्ट करते थे, ठीक है, इंडिया में ही जितने रेवेन्यू होते थे वो कलेक्ट करते थे, उससे क्या होता था, उनका फाइनेंस जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे वो फुलफिल हो जाते थे। These revenue could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, meet the cost of building the company fort, the offices at Calcutta. So now they were using these revenues for cotton and silk, company troops, meet the cost of building of the building, the company forts, offices, etc. जितनी भी चीजें थी अब रेवेन्यू से ही, इंडिया से जो रेवेन्यू आ रहा था उससे ही फुलफिल की जा रही थी। ओके। So now there is a small topic mentioned in your book. Okay, there is a pink paragraph. The promises of riches. What is the what it's mean? The territorial ambitions of the mercantile East India Company were reviewed with distrust and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of state, to the English monarch on 7th of January 1759 from Calcutta. But so large a sovereignty may possibly be an object too extensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possessions of these rich kingdoms. Now, I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. Now, before I explain this topic to you, now the territorial ambition of the mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in England. अब क्या हो रहा था 1759 में ये जो mercantile East India Company थी, इस पे जो territorial ambition था कि हम territory capture कर लेते हैं, East India Company जो है उसको अब ये दिमाग में आने लग गया था कि puppet नवाब्स तो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, अब हमें क्या कर लेना चाहिए, टेरिटोरियल जो है टेरिटरी कैप्चर कर लेना चाहिए। तो इससे डाउट इंग्लैंड में काफी डाउट क्रिएट होने लग गया था, ठीक है, वो उन्हें डिस्ट्रस्ट था कि वो लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो क्या हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव ने, जो विलियम पिट थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे जो इंग्लिश मनार्क जो क्वीन एलिजाबेथ थे उनके अंडर वर्क करते थे, उनके एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे, उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी 1759 में उनको लिखा कि but so large a sovereignty may possibly an object too extensive for a mercantile company
I flatter myself that there will be a little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. बोलते हैं कि कंपनी के लिए ये एक जस्ट ऑब्जेक्ट होगा कि हम क्या है कि हम किसी टेरिटरी को कैप्चर करते हैं, अपना ट्रेड करेंगे, ठीक है, या हो सकता है आपको प्रॉब्लम अराइज दिख रही होगी, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनको ये जो रिच किंगडम्स हैं उन्हें कैप्चर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उन्हें कैप्चर करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। सो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। नाउ आई लीव यू टू जज वेदर एन इनकम ईयरली ऑफ 2 मिलियन स्टर्लिंग, स्टर्लिंग क्या है, करेंसी है, ठीक है, कि जो आपकी 2 मिलियन स्टर्लिंग, ठीक है, 20 लाख स्टर्लिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल दीजिए 2 मिलियन 20 लाख स्टर्लिंग की जो आपकी इनकम है वो आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, या फिर एक वो आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, या फिर आप रियली में क्या है एक रिसोर्स रिच कंट्री को अपने अंडर में लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये उन्होंने लिखा और उन्होंने बेसिकली इस लेटर के थ्रू बोला कि हम इन रिच किंगडम्स को इजीली क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और काफी रिच बन सकते हैं, हम हमारा ट्रेड भी जो है काफी एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ this is all about this topic after Battle of Plassey. Now, if you are facing, so now your next topic is company officials become nabobs. Nabobs एक ये जो एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन बोल दो आप, कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो नवाब्स को क्या बोलते थे, नवाब्स बोलते थे। जैसे बैटल ऑफ पालाशी को दे प्रोनाउंस इट एज Plassey, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे। जस्ट लाइक दैट कंपनी ऑफिशियल्स, अब कंपनी ऑफिशियल्स क्या बन चुके थे, नवाब्स बन चुके थे। नवाब को उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे नवाब्स, राइट, नवाब्स। So after the battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company officials. After the battle of Plassey, अब कंपनी को क्या देना पड़ रहा था, जो अब रिप्लेस कर दिया गया था, जो एक्चुअल नवाब्स थे उनको तो फोर्सफुली बोल दिया गया था, यू हैव टू गिव अप योर लैंड, यू हैव टू गिव अप ऑल योर मनी एंड यू हैव टू गिव अप ऑल योर resources as a personal gift to company officially, मतलब forcefully उनको बोला जा रहा था। Now Robert Clive himself amassed a fortune in India, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनको ऐसा माना जाता है वो खुद भी क्या थे, एक he himself amassed। अमेज्ड का मतलब क्या होता है, अमेज्ड का मतलब होता है टू एक्यूमुलेट, ठीक है, टू एक्यूमुलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक हो रहे हैं, ठीक है। इवन इंडिया का जो फॉर्च्यून है, ठीक है, फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून का मतलब बोलते हैं ना कि जो इंडिया का जो फ्यूचर है, ठीक है, यू कैन से फॉर्च्यून मीन्स लक बोल दीजिए, वेल्थ बोल दीजिए, ठीक है, जो अब किसके हाथ में था, अब वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में था। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे he came to Madras from England in 1743 at the age of 18 years में वो आए थे इंग्लैंड से। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth pound 401 4,100,102, ठीक है। अब देखो जब 1767 में फाइनली वो जब इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो इंडिया की बहुत सी जो आप बोल सकते हो कि जो ट्रेजर है, ठीक है, वो अपने साथ लेके जा रहे थे, रिसोर्सेज लेकर जा रहे थे। पाउंड पाउंड 1 पाउंड में कितना होता है, आज की डेट में जो पाउंड है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 102 रुपीज आज के टाइम पे है। तो सोचो 4,01,102 पाउंड्स
का जितना वर्थ का जितना रिसोर्सेज जो है वो अपने साथ लेकर गए थे. So he appointed as a governor of Bengal in 1764 and he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. अब देखो एक्सीडेंटली आप या बोल दीजिए इंटरेस्टिंगली क्या होने लग गया, गवर्नर ऑफ बंगाल उनको बना दिया गया था 1764 में. रॉबर्ट क्लाइव को 1764 में गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया था एंड उनको एक जो वर्क दिया जाता है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने कहा था यू हैव टू लाइक रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो करप्शन चल रहा है ना ये आपको हमें रिमूव करना है. बट ही वॉज हिमसेल्फ 1772 में उसे खुद को क्रॉस एग्जामिन किया गया और क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे उनको इनकी जो वास्ट वेल्थ थी they were very suspicious about it and that's why they asked them कि उन्होंने देखा कि इनके पास इतनी वेल्थ कहाँ से आई है. So although he was acquitted, he committed और finally 1774 में जो है acquit हो चुके थे, ठीक है. उनको पता चल गया था कि he is guilty, he found guilty and he was acquitted. He committed suicide in 1774. Finally 1774 में जब वो पकड़े गए, ठीक है, उनको बोल दिया गया कि no you are guilty है, तो उन्होंने क्या कर लिया, suicide attempt कर लिया, suicide कर लिया. But not all company officials succeeded in making money like Clive. Robert Clive ने तो बहुत पैसा बनाया, ठीक है. Like कितना देख ही लिया आपने, approximately 4 लाख पाउंड तक का उन्होंने रिसोर्सेज उस टाइम पे 1764 के टाइम पे 1764 जब 67 में जब वो छोड़ के इंडिया को लेफ्ट करके जा रहे थे इंग्लैंड, उस टाइम पे वो इतना रिसोर्स अपने साथ लेके जा रहे थे, इतना वर्थ के जो गोल्ड थे या ज्वेलरी थी या जो भी रिसोर्सेज थे वो अपने साथ लेके जा रहे थे. बट जितने और भी ऑफिशियल्स जो थे वो उन्होंने क्लाइव के जितना पैसा नहीं बनाया इंडिया में. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई थी, बहुत सारे जो गवर्नर्स आए या कंपनी ऑफिशियल्स आए उनकी बहुतों की डेथ हो गई थी. कुछ लोगों की डेथ डिजीज के कारण भी हो गई थी, ठीक है, उनको कोई डिजीज लग गई थी. And war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. और उन्हें corrupt और dishonest कहना सही नहीं है क्योंकि सारे dishonest और corrupt नहीं थे. Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life there. बहुत सारे लोग अच्छे बैकग्राउंड से भी थे. They really wanted to do only trade, ठीक है, खाली ट्रेड करना चाहते थे. और मेन उनकी जो सबसे ज्यादा से ज्यादा उनकी मेन डिजायर क्या थी कि हम इतना कमा ले कि हम ब्रिटेन में आके एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, ठीक है. तो बस ये चीज थी कि how company officials become nababs and after becoming nababs, how Robert Clive made like ample money and how like everyone was not like himself like him. सब रॉबर्ट क्लाइव के जैसे नहीं थे. बहुत सारे लोगों को जस्ट एक इतनी अच्छी लाइफ, मतलब इतना पैसा कमाना था जस्ट कि वो एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सके. That's it. So class, this is all about today. Thank you so much for joining the class, everybody. Go through the topics, read the chapter very carefully. If you face any problem, do let me know. Do ask me in my next class if you're facing any kind of problem. Okay. I hope you all have enjoyed this class. Bye bye. Take care of yourself. I'm like